Hello everyone, welcome to today's discussion on money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग का हिंदी अर्थ है काले धन को वैध बनाना. This topics belongs to security issues for general studies. अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में भारत को रेगुलर फॉलोअप रेटिंग दी है. यह रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हिंदी अर्थ है वित्तीय कार्रवाई कार्य दल. यह दल एक अंतर सरकारी संस्था मींस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लैक मनी को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए 1989 में स्थापित किया गया. सन 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है. इनिशियली इसमें मेंबर ऑफ 37 थे और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर रोजर विल्किंस. तो ये था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. ये वर्ड लेक्चर में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन मिलेगा आपको. तो जब भी मैं FATF की बात करूं तो आप उसका तात्पर्य फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लगाएं. हियर्स all you need to know about this report and money laundering. Some questions is here. What is money laundering? Money laundering क्या है? What are the different stages involved in money laundering? What are the various methods of money laundering? What are the Financial Action Task Force Mutual Evaluation Report? Civil Services exams have frequently asked questions on this topic. For instance, in 2021 means a question was asked on the contribution of emerging technologies and globalization in the money laundering. Similarly, in the 2018 means there was a question that explored the connections between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. Why in news this topic? The Financial Action Task Force FATF released its mutual evaluation report for India. The report placed India in the regular follow-up category regarding its compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing recommendations. However, it highlighted several areas for improvement, including the need to strengthen prosecutions in money laundering and terrorism financing cases, protect the non-profit sector from terrorist abuse, and enhance the supervision and implementation of preventive measures. Prior to this year's mutual evaluation report, the FATF had undertaken an evaluation for India in June 2010. India was then placed in a regular follow-up category but was subsequently removed after a follow-up report in June 2013. India's on-site assessment by FATF happened in November last year, while the assessment came up for discussion in plenary discussion in June 2024. The regular follow-up rating is being seen positively by India. Currently, only 4 other G20 countries share this rating: the UK,
France, Italy, and Russia, which was suspended from the FATF in February 2023. Most developing countries fall under the enhanced follow-up category, which mandates them to submit reports annually compared to the once every 3 years requirement in the regular follow-up category. The FATF in its report said that the main source of money laundering in India originates from within. The most significant terror threats seems to be related to the Islamic State or Al-Qaeda linked groups active in and around Jammu and Kashmir. मतलब कहने का अर्थ यह है कि FATF ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य स्रोत अंदर से ही आते हैं और सबसे ज्यादा आतंकी खतरे जम्मू एंड कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय इस्लामिक स्टेट या अल कायदा से जुड़े समूहों से जुड़े हुए। जैसे देखिए हर एक दिन न्यूज़पेपर को सुर्खियों में बना रहता है कि जम्मू कश्मीर के इन पर्टिकुलर एरिया में आतंकी अटैक हुए। तो ये सारी चीजें इसी से रिलेट है कि कहीं ना कहीं देखिए इनको कहीं से धन मुहैया होती है इन आतंकवादी संगठनों को और उसी से हथियार साजो सामान खरीदते हैं, उनको प्राप्त होता है और उसका यहाँ पर इन गतिविधियों में इसका उपयोग करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग risks are related to fraud including cyber enabled fraud, corruption and drug trafficking। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जोखिम साइबर इनेबल्ड फ्रॉड, करप्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। जैसे देखिए अभी हाल ही में देखिए सुनते होंगे कई ऐसे जो है कि ड्रग्स की तस्करी होती है पाकिस्तान से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री के माध्यम से कहीं ना कहीं ड्रग्स सप्लाई होती है। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इससे हमारे यहाँ के काफी यूथ जो है तो ड्रग्स में लिप्त पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके कारण जो है पूरा परिवार बेघर हो जाता है, प्रभावित होता है। तो ये भी एक इसी से है रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, money laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin. This money is generated by a criminal activity but may appear to come from a legitimate source. यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक आय को उसके अवैध स्रोत के रूप में छिपाने के लिए उसका एक प्रसंस्करण है। यह मनी किसी आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न होता है लेकिन ऐसा लग सकता है कि यह वैध स्रोत से आया है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द कन्वर्शंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी knowing that such property is derived from any offenses for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of the assisting any person who is involved in such offense to evade the legal consequences of his actions। मीन्स इस मनी लॉन्ड्रिंग संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण है, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी अपराध से प्राप्त हुई है। प्रॉपर्टी की अवैध उत्पत्ति को छिपाने या छिपाने के उद्देश्य से या ऐसे अपराध में शामिल किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने में सहायता करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग generally involves 3 key stages to integrate funds into the legal financial system। यहां पर देखिए चार्ट में बोर्ड में आप देख नजर डालें, मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेजेस, इसके भी देखिए 3 स्टेजेस है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। यहां पर जैसे देखिए प्लेसमेंट, एक्यूमुलेटिंग द मनी फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, कि इलीगल एक्टिविटी से मनी हुआ, अब उसे हम कैसे एक चैनल के माध्यम से कैसे ले जाएंगे। देन लेयरिंग, इसका लेयरिंग कैसे होता है, प्लेसिंग द मनी इनटू ए फाइनेंशियल सिस्टम, एक सिस्टम के माध्यम से, और वो सिस्टम कई रूप में हो सकता है। देन इंटीग्रेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द मनी टू हाइड द ओरिजिन ऑफ द फंड्स, इस मनी को छिपा करके कैसे अलग अलग स्रोतों में हम वो यूज करते हैं ताकि वो पता भी ना चले कि कहां से आया है। देन रिटर्निंग द मनी फॉर द मनी लॉन्डर टू स्पेंड, कि उसको जो है अलग अलग मदों में खर्च करते हैं। अब इसे हम और अच्छे से
डिटेल में हम समझेंगे। ये देखें, यहां पर जैसे देखिए कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, कि मनी कैसे कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप चार्ट के माध्यम से यहां डायग्रामेटिक समझने का प्रयास करें कि ये देखिए मनी कैसे कलेक्ट होता है। देन प्लेसमेंट, तो जैसा देखिए प्लेसमेंट के रूप में जैसे मैंने कहा था कि 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये कैसे प्लेसमेंट होता है। यहां पर डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, किसी ना किसी फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो बैंक हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए लेयरिंग होती है, तो ये लेयरिंग के देखिए कई पार्ट्स 3 स्टेजेस है। यहां पर आप देखिए कि कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये साइक्लिक देखिए कैसे एक दूसरे से लिंक अप है, कैसे रोटेट होता है। मतलब आप ये समझिए कि ये मनी जो है ट्रांसफर ऑन द मनी अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक्स, मान लीजिए कि यहां पर 2 कंपनियां हैं एक्स एंड वाई, तो ये देखिए एंड इधर आप देखें तो ये कंपनी ये रोटेट होकर के कैसे ट्रांसफर होता है बैंक्स में, फिर ये कैसे वाई को देता है, और ये जो है मनी का एक प्रकार से तरीका, फिर इसके बाद मूवमेंट हो करके इसको क्या है कि हम एक पार्ट में ना दिखाकर, चूंकि एक पार्ट में होगा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा जानकारी, इसीलिए उसको जो है जो लोगों की लग्जरी लाइफ्स होती है उसके रूप में वो कई अलग अलग पार्ट में उसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है हों कहीं प्रॉपर्टी, अलग से प्रॉपर्टी में पैसा निवेश कर देते हैं, तो कहीं कार ले लेते हैं, कुछ मदों में लोन लेकर के ले लिया और उस पैसे को कैसे हम ईएमआई के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए फाइनेंशियल या कहीं जैसे मेडिकल फैसिलिटी, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल प्लाट ले लेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ चीजें निवेश कर देंगे, कई अलग अलग। तो कुल मिलाकर के उन पैसों को क्या करते हैं अलग अलग मदों में पार्ट बाय पार्ट करके कर देते हैं, और जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे पैसे होते हैं कि उनको नगद कैश के रूप में उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि पैसे, इससे पता भी नहीं चलता कि पैसा कहां आया। तो अब जैसे मैंने अभी यूज किया था प्लेसमेंट वर्ड, तो आप ये देखिए कि द क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ये है कि अपराध से अर्जित धन को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया जाता है। देन लेयरिंग, लेयरिंग मींस इस मनी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम इज लेयर्ड and spread over various transactions and bookkeeping tricks to hide the source of origin, मतलब इस सिस्टम में डाला गया धन विभिन्न लेवल्स पर फैला होता है तथा इस मूल स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न लेन देन और बही खाते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरीके से लेयरिंग होता है। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण। Laundered money is withdrawn from the legitimate account to be used for criminal purposes. Now money enters the financial system in such a way that the original association with the crime is disassociated. The money now can be used by offenders as legitimate money. मतलब legitimate money का मतलब ये होता है अकाउंट्स का वैध खाता, वैध खाते से धन निकाल कर आपराधिक उद्देश्यों, क्रिमिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह से एंट्री करता है कि अपराध के साथ मूल संबंध समाप्त हो जाता है। अब अपराधी द्वारा लेजिटिमेट मनी के रूप में धन का उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर यह भी चीज जानना जरूरी है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस टू हैव ऑल 3 स्टेजेस, सब स्टेजेस में भी कंबाइंड और सेवरल स्टेजेस में भी रिपीट मल्टीपल टाइम्स, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 3 स्टेज का होना आवश्यक नहीं है। कुछ स्टेजेस को कंबाइन किया जा सकता है या कई स्टेजेस को कई बार रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक और जनरल नॉलेज के दृष्टि से देखें तो देखिए अकॉर्डिंग टू यूएन मींस यूनाइटेड नेशंस, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी लॉन्डर्ड globally in 1 year is 2 to 5% of global GDP, or $800 billion to $2 trillion in current US dollars due to the clandestine
or hidden nature of money laundering, it is however difficult to estimate the total amount of money that goes through the laundering cycle. तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है कि सोचिए कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में इसका कितना बड़ा रोल है इस चीज को समझने. नाउ देयर आर वेरियस मेथड थ्रू विच मनी लॉन्ड्रिंग इज डन. तो अब देखिए क्या है कि इसे हम और आपको अभी एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं. ये देखिए, देयर आर वेरियस मेथड थ्रू विच मनी लॉन्ड्रिंग इज डन सच एज स्मर्थिंग, मूल्स, gambling and laundering money at casinos, hawala transactions, investing in commodities such as gems and gold that can be moved easily to other jurisdictions, counterfeiting using shell companies. Now, firstly, understood smurfing. How does smurfing work? स्मर्फिंग कैसे कार्य करता है इस पर चर्चा करेंगे. मतलब आप समझिए कि द क्रिमिनल ब्रेक्स अ लार्ज चंक्स ऑफ कैश इनटू मल्टीपल स्मॉल डिपॉजिट्स, ऑफन स्प्रेडिंग देम ओवर मेनी डिफरेंट अकाउंट्स टू अवॉइड डिटेक्शन. मतलब जो क्रिमिनल होता है वो कैश के बड़े हिस्से को छोटे छोटे जमाओं में तोड़ देता है तथा पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर उसे कई अलग अलग खातों में फैला देता है. जैसे यहां पर देखिए, तो फर्स्टली वी नो स्मर्फिंग. व्हाट इज स्मर्फिंग? स्मर्फिंग इज फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग conducted by criminal who are also known as smurfs. Smurfing is a form of money laundering conducted by criminals who are also known as smurf. ये देखिए स्मर्फ कैसे. द स्मर्फ receives illegal funds, then the smurf divides the funds into smaller amounts, कई पार्ट्स में छोटे छोटे. then smurf layers the funds and then smaller funds are recombined into a single account. Then the criminal receives the laundered money. Understood? And next is mules. Mules, cash smugglers who snake large amount of cash across borders and deposit them in a foreign accounts where money laundering enforcement is less strict. मतलब कैश स्मगलर जो बड़ी मात्रा में नकदी को सीमा पार ले जाते हैं और उसे विदेशी खातों में जमा कर देते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग इन्फोर्समेंट लेस स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे देशों में. अब यहां पर आप देखें कि देखिए ये क्रिमिनल है, अपराधी है. कैसे करता है ये? क्रिमिनल प्रोसीड्स प्रोवाइडेड, ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्री में ले गए, चूंकि क्या कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर क्या कि वहां उन लोगों को धन को छिपाने का एक बहुत अच्छी जगह होती है विदेशों में जाकर के, वहां पर मनी को म्यूल करते हैं. देन प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम. फिर यहां पर देखिए फंड्स लेयर्ड थ्रू वेरियस ट्रांजैक्शन. ये अलग अलग चीजों में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, यद्यप डॉलर्स के रूप में होता है. फिर देन आफ्टर लेयर्ड फंड्स रिटर्न टू क्रिमिनल, और अल्टीमेटो फिर कहां वापस आ जाता है? क्रिमिनल्स के पास, ठीक है. और इस तरीके से देखिए इसकी भी एक प्रॉपर एक साइकिल प्रोसेस है. दीज आर म्यूल्स. नेक्स्ट इज हवाला. हवाला लेन देन, हवाला ट्रांजैक्शंस. हवाला is an informal method by which money can change hands without the use of banks. This works through courts, contacts and trust with no paperwork at all. Investment through innovative derivative instruments like participatory notes also is a means to hide black money. मतलब आप समझिए कि जो हवाला है एक इनफॉर्मल टेक्निक है जिसके द्वारा बैंकों के इस्तेमाल के बिना
पैसों को हाथों हाथ बदला जा सकता है। यह कोड कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट के जरिए काम करता है और इसके लिए किसी तरह के पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पार्टिसिपेटरी नोट जैसे न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए निवेश करना भी ब्लैक मनी को छिपाने का एक तरीका है। यहां पर देखिए हवाला में, यहां जैसे देखिए एक डायग्राम से क्लियर है, यदि आप गौर से डायग्राम को देखें तो यहां पर देखिए दो ब्रोकर हैं, ब्रोकर ए एंड ब्रोकर बी। ब्रोकर ए और ये देखिए क्या होता है, ब्रोकर ए ब्रोकर बी को इंस्ट्रक्शंस भेजता है प्लस पासवर्ड, सेंड इंस्ट्रक्शंस प्लस पासवर्ड। एंड देन ये जो ब्रोकर बी है ये देखिए मनी को क्या करता है, ये मनी आता है, जैसे ये कोई सज्जन है मान लीजिए यहां पर, और ये मनी इनके पास आता और ये इनको फिर पासवर्ड देते हैं। और इसी तरीके से देखिए यहां से ये हुआ। अब यहां पर देखिए इसी प्रकार से एक दूसरे सज्जन है, इनके पास भी इस ब्रोकर के माध्यम से मनी आती है, मनी जाता है और ये इनको पासवर्ड देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए पर्सन वन इन वन कंट्री सेंड्स मनी टू सेकेंड पर्सन्स इन अनदर कंट्री, मतलब एक से दूसरे सज्जन को एक से दूसरे कैसे एक दूसरे को सेंड करते हैं। और ताकि इससे पता भी चल जाता है कोड वर्ड में, देखिए बड़े कितने शांति तरीके से, और इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई कागजी नहीं होता, ना कोई बैंक्स का नहीं होता, और बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इन्वेस्टिंग इन commodities such as gems and gold that can be moved easily to another jurisdiction, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि पैसे को छिपाने के लिए कुछ लोग जो है फेस्टिवल्स वगैरह में जेम्स एंड ज्वेलरीज के रूप में शॉपिंग कर लेते हैं, यहां से भी पैसे को एडजस्ट किया जा सकता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी जैसी वस्तुओं में निवेश करना जिन्हें आसानी से अन्य क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। Discreetly investing in and selling a valuable assets such as real estate, cars and boats, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि अचल संपत्ति, कार और अन्य जैसी मूल्यवान संपत्तियों में विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करते हैं, और उससे क्या है कि नगद कैश के रूप में ले लिया और कोई पता भी नहीं चला, और प्लस अपने पास पैसा भी है, मतलब पैसा कैसे छिपाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। काउंटर फिटिंग मतलब जालसाजी। यूज ऑफ करेंसी एक्सचेंज मीन्स करेंसी का एक्सचेंज का उपयोग करना। यूजिंग सेल कंपनीज इनएक्टिव कंपनीज आर कॉर्पोरेशन दैट एसेंशियली एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली, मतलब सेल कंपनी बना करके जहां पर केवल पेपर वर्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, कागजी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, लेकिन ग्रास रूट पर देखा जाए तो जीरो होता है और ये दिखता है कि ये कंपनी चल रही है। कई ऐसे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों के किसी ऑफिस में उनके कई ऑफिसेस खुले होते हैं, जो कि और ऑफिस इतना बढ़िया ठीक ठाक बनाते हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में बनाते हैं, वहां प्रॉपर टीम होती है, टीम काम करती है और ऐसा लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा, जबकि आप ग्रास रूट में देखेंगे तो ग्रास रूट में कुछ नहीं होता। यानी पैसे को मैनेज करने के लिए सेल कंपनी बना लेना, ये भी एक टेक्निक है। सेम है तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स अभी आई है जो द FATF मॉनिटर्स countries to ensure full and effective implementation of FATF standards. FATF mutual evaluation provide detailed country reports analyzing the effectiveness of measures against money laundering as well as terrorist and proliferation financing. मतलब FATF इन मानकों का पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए FATF देशों की निगरानी करता है। FATF के पारस्परिक मूल्यांकन, मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही आतंकवाद और प्रसार, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के विरुद्ध उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करते हुए डिटेल कंट्री को देता है, रिपोर्ट देता है। नाउ यू नो टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग refers to the way and methods that terrorist organizations use to fund activities and threaten national and international security. Unlike money laundering, which often creates a circular flow of funds that eventually returns to the original source, terrorist financing typically follows a linear path in this process. The money generated is directed towards supporting terrorist groups and their activities. मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब यह है
उन विधियों से है जिनका उपयोग आतंकवादी संगठन, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने वाली एक्टिविटी को वित्त पोषित करने के लिए करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो अक्सर मनी का एक सर्कुलर फ्लो बनाता है जो अंततः ओरिजिनल स्रोत पर वापस आ जाता है, जबकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग आमतौर पर एक लीनियर पाथ का अनुसरण करता है और इस प्रोसेस में उत्पन्न धन को आतंकवादी समूहों और उनकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। The mutual evaluation reports consist of peer reviews where members from various countries evaluate another country after analyzing a country's anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Mutual evaluation provide recommendations to further strengthen its framework. मतलब यह हुआ कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में सहकर्मी समीक्षा शामिल होती है, जहां विभिन्न देशों के मेंबर्स दूसरे देशों का इवैल्यूएशन करते हैं और किसी देश की धन शोधन निरोधक मींस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद निरोधक वित्त पोषण प्रणाली काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम का विश्लेषण करने के बाद पारस्परिक मूल्यांकन यानी म्यूचुअल इवैल्यूएशन इसके ढांचे फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं। यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, मींस हिंदी में हम बोलते हैं प्रसार वित्त पोषण। According to the United Nations, presently there is no internationally accepted definition of proliferation financing. However, it can be described as providing financial services for the transfer and export of nuclear, chemical or biological weapons as well as their means of delivery and related materials. This concept encompasses the financing of trade in proliferation sensitive goods and may also include financial support for individuals or entities involved in proliferation activities. यूनाइटेड नेशन के अनुसार यह है कि वर्तमान में प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग की कोई इंटरनेशनल लेवल पर डेफिनेशन नहीं है। हालांकि इसे न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के ट्रांसफर और एक्सपोर्ट के साथ साथ उनके वितरण के साधनों और संबंधित सामग्रियों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में प्रसार संवेदनशील वस्तुओं मींस प्रोलिफरेशन सेंसिटिव गुड्स के व्यापार के वित्त पोषण को शामिल किया गया है और इसमें प्रसार गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल हो सकती है। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड FATF। जो मुद्दा था अभी कि FATF और भारत, तो FATF क्या है इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहां पर आप देखें अबाउट ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग and established July 1989 by a G7 summit in Paris. Its objective: combat money laundering and terrorist financing and counter the funding of weapons of mass destruction. Its secretariat located at the headquarters in Paris. 37 member of jurisdictions and 2 regional organizations. India and FATF means become a observer in 2006 and became 34th member in 2010। मतलब 34वें मेंबर के रूप में भारत 2010 में FATF का मेंबर बना। The Paris-based intergovernmental organization FATF is the global money laundering and terrorist financing watchdog. It was formed in 1989 as a G7 initiative to examine and develop measures to combat money laundering. In 2001, the FATF expanded its mandate to also combat terrorist financing. Means ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग निगरानी संस्था है। इसे 1989 में G7 के पहल के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास के लिए बनाया गया था। 2001 में FATF ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। The FATF is a 40-member body. India became a member of FATF in 2010 और इस तरह से ये 40 सदस्यीय निकाय है वर्तमान में और भारत इसका मेंबर जो है 2010 में बना। This line is important for your examination. FATF has outlined a framework for measures to help countries
taken illicit financial flows. These are listed as 40 recommendations that are divided into 7 distinct areas. मतलब ये हुआ कि एफएटी अपने अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने में देशों की मदद के लिए उपायों की एक रूपरेखा तैयार की है। इन्हें 40 अनुशंसाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें 7 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। AML means anti money laundering, counter terrorist financing policies and coordination, money laundering and confiscation, terrorist financing and financing of proliferation, preventing measures, transparency and beneficial ownership of legal persons and arrangements, powers and responsibilities of competent authorities and other institutional measures, and international cooperation. तो देखिए, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली सिविल सर्विसेज, मेन एग्जामिनेशन एंड आल्सो स्टेट पीसीएस. थैंक्स.